हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। फिर से एक बार वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। अप टू द लास्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल फील्ड. Okay, so the formula of electrical field is the E is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 or K Q divided by R square into R hat, where R hat is a unit vector in a direction from charge to that point where you are measuring the electrical field at a distance R. Okay, next point is a electric flux. I have skipped it for a while, okay, because we are discussing about the electrical field, so near about all the topics should be covered. यानी कि electrical field की हम discuss कर रहे हैं तो उसके regarding जितने भी topic हैं वो cover हो जाने चाहिए. और first of all मैं पूरी theorem ही finish करूंगा और उसके बाद numerical session धीरे धीरे लेते जाएंगे. ओके, चलिए, तो अब नेक्स्ट बारी आती है इलेक्ट्रिकल डाइपोल और इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल. ओके, यानी कि डाइपोल क्या होता है और इस डाइपोल की वजह से फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या जनरेट होता है, कितना जनरेट होता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, वो सब हम डिराइव करेंगे. ओके, चलिए, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल की डेफिनेशन आपको बताता हूं. डेफिनेशन इज लाइक द सिस्टम ऑफ द इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by the finite distance, and that distance is 2a. Okay, we indicate it by 2a. A is a small a, is called the electric dipole. Okay, I'm again repeating, the system of two equal and opposite charge separated by finite distance in bracket 2a is called electric dipole. Finally, I am repeating, the system of two equal and opposite charge separated by the finite distance bracket 2a is called electrical dipole. Must be the condition which should satisfy that the charge should be equal. Means one side, if you take the plus 2 coulomb, then another side you can take 6 coulomb. There must be same. And second condition is the opposite. So once you take the positive, then second charge must be negative. Plus 2 you can't take. That is not a dipole. Okay, so there must be condition which should be satisfied, that the two charge should be equal, and in a types there must be negative, and they should be separated the finite distance, not so long distance. Okay, यानी कि जो कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करनी है वो दोनों चार्ज इक्वल होने चाहिए. ओके, बाय द मैग्नीट्यूड, यानी कि एक 2 है तो दूसरा 2 ही होना चाहिए. दूसरी कंडीशन, एक प्लस 2 है तो दूसरा माइनस ही होना चाहिए. ओके, और दोनों को ज्यादा दूर पे नहीं, एक फिक्स बहुत कम दूरी पर रखना है, तब इस सिस्टम को आप इलेक्ट्रिकल डाइपोल कह सकते हो. ओके, चलिए, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सी, I have written the definition. The system of two equal, that first condition, opposite, second condition, okay, and that should be separated by finite distance, and that distance is 2a. Okay, then that is called the electrical dipole. Second thing is, you can also say the characteristic, the total charge or sum of the both charge is always 0, because both are equal and opposite. Then and then it is called the dipole. So that is why the sum of the dipole, sum of the charge of the dipole is always 0. But the electrical field due to this dipole never is 0 around the region of the dipole. Okay, then one
vector quantity which is associated with the dipole is so called dipole moment. ओके यानी कि डाइपोल के साथ उसकी और एक वेक्टर क्वांटिटी जुड़ी हुई होती है जिसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट या डाइपोल मोमेंट कहा जाता है. ओके उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. इट इज द पी वेक्टर इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू. ओके डिस्टेंस है 2a, वो पॉजिटिव नेगेटिव अगर मिड पॉइंट लेते हैं उनके बीच में तो इंडिकेट कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज इंडिकेटेड एज वेक्टर क्वांटिटी इनटू क्यू यानी कि चार्ज. ओके सो P is equal to 2a into q is called the dipole moment, and as I say that it is vector quantity, so the direction of this dipole moment is always from the negative charge to positive charge. Okay, keep in mind that is from negative charge to the positive charge. Direction of the electrical field is positive charge to negative charge. Okay, but the direction of electrical dipole moment is from negative charge to positive charge. Keep in mind. Okay, यानी कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट की जो दिशा है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर ही होगी. ओके तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है डाइपोल का, तो उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. ओके सो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन इट्स ओन एक्सिस यानी कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डाइपोल मोमेंट को जिस एक्सिस पे रखा गया है उसके खुद के एक्सिस के कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा वो. ओके एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन इट्स रीजन ऑफ अ इक्वेटर यानी कि उससे जहां पे रखा गया है जिस एक्सिस पे रखा गया है तो उसके इक्वेटर रीजन में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा. ओके वी आर गोइंग टू फाइंड दैट. यानी कि इस दो पार्ट में इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैं इक्वेशन मैथमेटिकली डिराइव करूंगा. ओके ओके सी आई हैव ड्रॉन अ डाइपोल. ओके व्हिच कैन contain the plus q charge and minus q charge which is separated by the distance 2a. Okay now here this is the middle point, this is the middle point of the dipole. So from here to consider a point P on its own axis, okay, which is at a distance r. यानी कि मिडल पॉइंट से मैंने पॉइंट P उसके एक्सिस के बाहर कोई एक पॉइंट लिया है उसका डिस्टेंस r है. ओके तो मैं प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज से उस पॉइंट P का डिस्टेंस मेजर करूंगा. ओके इवेंचुअली आई विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट अ पॉइंट P, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट अ पॉइंट P, and then I will do it the linear summation by using superposition principle. And as I know that the formula of the electrical field is simple, K Q by R square. Okay, so I require the distance and the direction. Okay, we will mention it, but first I require the distance. So distance of the plus Q charge from here to point P, that is r minus a. Okay, how? From middle point to point P distance is total r. Okay, so I will subtract this much distance, then I will get distance from here to here. Okay, so total r minus this much distance, so r minus a. Okay, यानी मुझे पॉइंट प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस मेजर करना है. मैं क्या करूंगा, P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करने के लिए प्लस क्यू चार्ज की वजह से जितना फील्ड क्रिएट हुआ पॉइंट P पे और माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पे जितना फील्ड क्रिएट हुआ वो फाइंड करूंगा और दोनों को सम अप कर दूंगा. ओके फील्ड का इक्वेशन है के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो के फिक्स है, क्यू यहां पर फिक्स है, प्लस क्यू माइनस क्यू लगा देंगे, बट आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस. ओके तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज, तो उसका फील्ड ई प्लस हम शो करेंगे और मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस.
आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस, कहां से, चार्ज से जिस पॉइंट पर आप फील्ड फाइंड कर रहे हो वहां का। तो मैंने ये डिस्टेंस पहले फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड हुआ, तो मिडल पॉइंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस मैंने कहा आर है, ओके, तो प्लस क्यू से इतना डिस्टेंस हम उसमें से काट लेंगे, ओके, सो दैट इज आर माइनस ए। सेम वे डिस्टेंस ऑफ द माइनस क्यू चार्ज टू द पॉइंट पी, यानी कि माइनस क्यू जहां पे प्लेस किया है वहां से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो मिडल पॉइंट से यहां तक का आर है, ओके, और मिडल पॉइंट से यहां का डिस्टेंस ए होगा, तो टोटल आर प्लस ए हो गया, ओके। फिगर समझ में आ गई, क्लियर है। अब अपने तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये तीनों चीज कंपलसरी आनी चाहिए, आर प्लस ए, आर माइनस ए और 2a, ठीक है। और पॉइंट पी यानी कि टोटल 4 चीजें अच्छे से उसमें इंडिकेट करनी है। क्लियर हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सी एज शोन इन द फिगर, कंसीडर अ डाइपोल which is placed on the axis in such a way that the origin is superposed, okay, origin is superposed at a Cartesian coordinate system। हमने कैसे यहाँ पे सिस्टम ली हुई है कि इस ओरिजिन यानी कि मिडल पॉइंट पे ओरिजिन सुपरपोज हो, उस तरीके से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ली हुई है, इन सच अ वे दैट ओरिजिन इज एट अ मिडल पॉइंट ऑफ द डाइपोल, ओके। एंड what we are going to find out, we will find out the electrical field due to this dipole at a point P, मैंने जैसे बताया point P, okay, which is at a distance R, okay, ज्यादा लिखना है तो लिख सकते हो R, okay, distance R from the middle point of the dipole, okay। So सबसे पहले, so the distance of plus Q charge from point P is from the figure or as shown in figure is R minus A, and same way for the minus Q charge is R plus A. And how we get the total electrical field? So here we use the superposition principle to find out the total electrical field at a point P. Okay, यानी कि अब मैं जो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्लस क्यू चार्ज से फाइंड करूंगा उसे E प्लस लिखूंगा, ओके, और फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज इज ई माइनस, एंड दोनों को समेशन कर दूंगा तो टोटल फील्ड, गेट इट। चलिए पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं, ओके। सो हियर आई हैव रिटन द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट अ पॉइंट P, और यू कैन से दैट एट अ डिस्टेंस R, ओके। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, K और 1/4 pi epsilon 0 Q divided by R square. What is the distance from the plus Q charge to the point P? Here you can see it again. यानी कि प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट, यानी कि प्लस क्यू चार्ज का फील्ड फाइंड कर रहे हैं पॉइंट P पे, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना था, R माइनस ए, तो हमने लिख दिया यहाँ पर R माइनस ए का होल स्क्वायर, okay, and P hat, what is the P hat? It is a unit vector and direction of this unit vector in a direction of dipole moment, सही है, ओके, समझ में आया। उसी तरीके से मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज भी लिख सकता हूं, कितना होगा, दैट इज द K 1/4 pi epsilon 0 Q यानी माइनस Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो फिर से यहाँ पे देख लीजिए डिस्टेंस कितना था, तो माइनस क्यू चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना था, R प्लस ए, ओके, R प्लस ए, सो दैट इज R प्लस ए होल स्क्वायर into same P hat. Now we use the superposition principle to calculate the total electrical field, okay, so that is total field is equals to E plus E माइनस, यानी कि टोटल फील्ड कितना होगा, दोनों का समेशन कर देंगे हम, ओके। तो पहले K को कॉमन ले लिया, 1/4 pi epsilon 0 कॉमन, ब्रैकेट में रहेगा Q डिवाइडेड बाय R माइनस ए होल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस, ओके, माइनस क्यू चार्ज का माइनस यहाँ पे दे दिया हमने, सो माइनस Q डिवाइडेड बाय R प्लस ए होल स्क्वायर, एंड P हैट इज कॉमन आउट फ्रॉम द बोथ, ओके। चलिए अब सिंपली that cross multiplication
क्यू को मैंने बाहर ले लिया, और आर प्लस ए का स्क्वायर, सो आर स्क्वायर प्लस 2ar या आर ए प्लस ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। तो मैंने साइन बदल दिए, सो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ar एंड प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय r minus a r plus a is a factor of r square minus a square, and that is entire square, so r square minus a square whole square, and p here same the common out. Get it? Okay, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कटेड आउट, ए स्क्वायर कटेड आउट, तो टोटल बचा 2ra प्लस 2ra, टोटल 4ra। ओके, क्यू जैसे कि है वैसे ही है। ओके, सो टोटल 4ra डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू पी हैट। क्लियर है? ओके, चलिए फिर कितना बचेगा टोटल, हमने इसे सेपरेट कर दिया है, 2 2 4 यानी 2 अलग कर दिया, क्यू और ए बाहर इसके साथ ले लिया हमने। वाई? Because 2a into q is a known quantity which is so called the dipole moment. Okay, अभी देखा हमने आज, तो p को अलग बनाने के लिए मैंने इसमें से 2aq को अलग कर लिया, अपॉन 4 पे एप्सिलॉन 0, बचा क्या, यहां से 2 किया अलग तो 2 बचा और r। ओके, एंड डिनोमिनेटर सेम एज इट इज एंड द p hat is a common out। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताओ, here would be written p। ओके, चलिए तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0, अब इसकी जगह क्या लिख दिया, p here 2 एज इट इज r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। वाई? रीजन यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, p इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू। पता चला? ओके, सो नाउ द इलेक्ट्रिकल फील्ड E is equals to 2kpr divided by r square minus a square whole square into p hat. Okay, that is the final equation because of the electrical field due to entire dipole. Now consider the point which is so greater than to the distance a. A distance क्या था? ओके, हाफ डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द डाइपोल, यानी कि डाइपोल के सेपरेशन का हाफ। देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 2a था, हाफ डिस्टेंस यानी कि a जितना डिस्टेंस है उससे ज्यादा डिस्टेंस पर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर कहीं दूर, इन शॉर्ट आप कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मेजर करते हैं। ओके, तो क्या होगा, हियर इन दिस केस व्हाट वी कैन नेग्लेक्ट, यानी कि r की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है और उसके सामने a की वैल्यू बहुत छोटी है, तो आप किसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, a को नेग्लेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ इन दिस सिनेरियो व्हाट वुड बी द इक्वेशन, अब a चला गया, ये बहुत छोटा है, r की वैल्यू बहुत बड़ी है, सो r रेज टू 2 यानी टोटल r रेज टू 4, सो 2kpr डिवाइडेड बाय r रेज टू 4, तो क्या होगा, एक r कट जाएगा। ओके, तो बचेगा क्या, वी हैव लेफ्ट नाउ e इज इक्वल्स टू 2kp, एक r गया नीचे, r क्यूब इंटू p हैट। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, see here 2 is constant, k is constant, p is also constant. Okay, so E is proportional to 1 over r cube. So here we can say that the electrical field due to dipole on own axis is changed according to the 1 over r cube. Okay, so if we have the normal charge, यानी कि सिंगल चार्ज है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का इक्वेशन है E is equals to kq divided by r square r hat. Okay, k constant, q constant, so we can say E proportional to 1 over r square. Okay, single charge के लिए, but if we have two charge, okay, in a fashion of dipole,
तो अब उसका इक्वेशन हमने डिराइव किया, उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड 1/r³ के हिसाब से चेंज होगा. Okay, so that is the basic difference. So if I say that the electrical field due to single charge, then it is proportional to 1/r². But if I say that the electrical field due to dipole on its own axis, then it is changes according to 1/r³. Okay, so that was the entire theory about the electrical field due to dipole on its own axis. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक डाइपोल ले ली. ओके, और मिड पॉइंट पे ओरिजिन क्या हो, सुपरपोज हो, ऐसा सिस्टम ले लिया. और कोई एक पॉइंट पी कंसिडर कर लिया जहां पर हम प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना फील्ड क्रिएट होगा इंडिविजुअली वो फाइंड करेंगे और फिर सम अप कर देंगे. सो उसके लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए. सो आई हैव फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज टू द पॉइंट पी इज r-a एंड माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस दैट इज r+a. ओके, मिडल पॉइंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस है r. ओके, सो फर्स्ट वी हैव रिटर्न दैट एंटायर थिंग, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज से r+a, r-a डिस्टेंस, एंड देन electrical field due to E plus is equals to kq/r². So 1/4πε0 into q divided by r means r-a whole square into p hat. सेम वे माइनस क्यू चार्ज से इक्वेशन लिखा, दोनों को जोड़ दिया. ओके, देन वी हैव सिंप्लीफाइड इट एंड फाइनली वी गेट द 4ra into q upon 4πε0 into r² minus a² and we have separated into the fashion of dipole moment. ओके, क्योंकि हमें कांस्टेंट चाहिए था. सो 2aq अलग कर दिया, p आ गया. ओके, एंड फाइनली वी हैव रीच्ड टू द इक्वेशन E is equals to 2kp r³ into p hat. Okay.